एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो टुडे वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ क्लास 10th। देखो बेटा, पॉलिनॉमियल के पहले वी शुड नो व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं इधर लिख रहा हूँ व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ देखिए, सी a expression consists of different variables x and y having different powers separated by plus, minus, multiplication and division sign and arranged in ascending or descending order is called an algebraic expression. And in any algebraic expression, the powers can be positive, negative, and in the form of fraction. Now see, I am writing an expression. Suppose this is the expression 2x raised to power 4 y 3x cube y square 4 x square and y square minus 6xy plus 7. देखो बेटा, this is an algebraic expression. Now one more, see, 3x की पावर 5 y की पावर 4 माइनस 6x की पावर 4 y की पावर माइनस 4 प्लस 7x क्यूब y क्यूब माइनस 6x square. This is also algebraic expression. See here, all powers are positive, here power is negative. And see one more expression, 7x cube y square minus 6x square upon y square plus 2 root x y square minus 7xy. See, this is also an algebraic expression. See, here power is in the form of fraction. Okay, now one more. See, means 10 x की पावर 5 y की पावर 4 प्लस 6 x की पावर 4, कुछ भी लिख सकते हैं, y की पावर 3 प्लस 5 x क्यूब y की पावर माइनस 2 प्लस 8. Now see, this is also an algebraic expression. Here power is negative. Okay, now one thing, just you see, इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से जन्म होता है किसका? पॉलिनॉमियल का. ओके, तो व्हाट इज अ पॉलिनॉमियल? अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेरिएबल हैविंग डिफरेंट पावर्स separated by plus, minus, or you can say multiplication and division sign, and generally the powers are arranged in descending or ascending order. Now I am writing, means polynomial and algebraic expression consists of single variable, okay, having different powers separated by plus, minus, multiplication or division sign and arranged in ascending or descending order is called a polynomial. Generally the polynomial represented by, suppose if we are taking variable x, then polynomial will be represented and denoted by px. If we are taking variable y, then py. If we are taking variable t, then pt. I hope it's very clear. Now see, suppose there is an algebraic expression c px and this is 4x की power 5 plus 6x की power 4 minus 7x cube plus 5x square plus 6. Now see, this is an algebraic expression. Now see, the powers are in whole numbers. That is, power should be always in whole numbers. See, one more, 3x 2x cube plus 6x square minus 7x square plus 6. Now see, if I ask this algebraic expression is polynomial or not, just you see the power. See,
the powers are in whole numbers. Okay, therefore this is also polynomial. And see, if I say px equals to 4x की power 4 minus 6x cube plus 5x की power minus 3/4 plus 6. If I say this is polynomial, just to see the power 4 3, it's okay. Here power is negative, therefore this is not a polynomial. See one more example. I hope concept is very clear. In a polynomial, the powers are always in whole number. Powers cannot be negative and in the form of fraction. If powers are negative, then that polynomial, that algebraic expression will not be polynomial. Now see few more example. Okay, now just see few more example. Suppose see this is okay, this is polynomial 4x cube plus 2x square 2x cube 5x square 7 upon x plus 4. Now if I ask this is polynomial, now just check this powers are in whole numbers, this. Now what about this? Here power is in the form of negative because this is in denominator. We can write this as means how 7x raised to power minus 1. Okay, I hope concept of polynomial is very clear. See, I have already told you, in a polynomial powers should be in whole numbers. whole numbers का मतलब क्या? 0 1 2 3 4 dash and powers should not be नेगेटिव, नहीं होना चाहिए, नेगेटिव are in the form of फ्रैक्शन. ओके, ये नहीं, नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. अब देखो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री. एंड सी वन थिंग यू शुड नो, व्हाट इज डिग्री. सी यहाँ पर पहले देख लो व्हाट इज डिग्री. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे POLY डॉट. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री. सपोज सी दिस इज पॉलिनोमियल and it is 4x raised to power 5 minus 3x raised to power 4 plus 7x square plus 5. बेटा इसकी डिग्री बतानी है. तो सबसे पहले ये देखो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है. देखो पहले, ओके, पावर्स आर इन होल नंबर, इट्स ओके. देन द डिग्री विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ये है 5, तो डिग्री क्या हो जाएगी 5. ओके, अब देखो एक क्वेश्चन और देखो यहाँ से. अब सपोज ये है 5x रेज टू पावर 7 3x रेज टू पावर 5 माइनस 4x रेज टू पावर 4 3x क्यूब प्लस 4 ये दिया गया है. देखो बेटा इसमें आपको डिग्री बताना है, तो सबसे पहले पावर से करो. द पावर्स आर इन whole number, it's okay. So degree will be 7. एक क्वेश्चन और देखो, अगर ऐसा पॉलिनोमियल दिया गया है 5x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 3x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 7. अब देखो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और उसमें बताना होता डिग्री कितनी. पहला ही ऑप्शन होता है डिग्री 6. अब गलती कहाँ होती है, आपने देखा 6 सही कर दिया. सबसे पहले यू हैव टू सी द पावर्स.
देखो ये ओके, ये ओके, ये ओके, यहाँ पर क्या है, पावर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2। सो दिस algebraic expression is not polynomial. If this is not polynomial, then how can we tell the degree? Then its degree, we cannot tell the degree of this polynomial. I hope you have understood. Now just see the division of polynomial. Now the polynomials are divided into two types on the basis of number of terms and on the basis of degree. यहाँ से देखो डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल बहुत ही आसान है। डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये देखो, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, इफ पॉलिनॉमियल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म, केवल एक टर्म है, ओनली वन टर्म, तो वो क्या होगा, मोनोमियल। मोनो मीन्स सिंगल, मोनोमियल, समझ में आ गया। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, x हो सकता है, 7 हो सकता है। उसके बाद इफ़ टू टर्म्स बाई मीन्स 2, बाइनॉमियल, उसको बाइनॉमियल बोलेंगे। अब देखो जैसे x + 2, ओके, x³ + 4, x⁴ 5 + 7, दीज आर द बाइनॉमियल। उसके बाद मोर देन 3 टर्म्स, सॉरी, if 3 terms, not more 3 terms, if a polynomial containing 3 terms, तो देखो that will be try means 3, trinomial, ओके। अब देखो फॉर एग्जांपल x³ + 4x + 7 हो जाएगा और ये x³ + 6x² + 4 हो जाएगा। और इफ़ पॉलिनॉमियल हैविंग मोर देन 3 टर्म्स मीन्स मोर देन 3 टर्म्स, आप देखो बेटा मोर देन 3 टर्म्स, देन दैट विल बी पॉलिनॉमियल आर मल्टीनॉमियल, ओके। अब यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ 6x, कुछ भी लिख सकते हो, 6x⁴, 3x³ 4x² + 6, ये देखो मोर देन 3 टर्म्स। अब देखो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर देखो डिग्री 0 है तो दैट पॉलिनॉमियल विल बी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जैसा नाम वैसा काम। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल मीन्स जस्ट सिंपल नंबर्स, मीन्स 2, 3, 4। अब बोलोगे सर ये पॉलिनॉमियल में वेरिएबल होना चाहिए, तो बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम, वेरिएबल लिख लो, 2x⁴, 3x⁴, 4y⁴, एंड नाउ जस्ट यू सी डिग्री इज 0 व्हेन डिग्री इज 1। अगर डिग्री 1 है तो दैट पॉलिनॉमियल विल बी लीनियर पॉलिनॉमियल। अब देखो कुछ भी डिग्री 1 होनी चाहिए, x+4 या x और आप x-7, देखो यहाँ डिग्री कितनी है, इसकी पावर 1 है, ये पावर 1 है, ओके। उसके बाद हो गया, उसके बाद सेकेंड वन, अगर डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो दैट पॉलिनॉमियल विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बोलो बेटा प्रेम से बोलो, जब माता की क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मतलब डिग्री 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए, पॉलिनॉमियल की औकात 2 से ज़्यादा नहीं होगी, ऐसे देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 3x + 4, ये देखो डिग्री आपकी 2 है, और x² ये भी आपका क्या है, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, डिग्री 2 है, और x² - 4 डिग्री क्या है, 2 है। और उसके बाद डिग्री अगर 3 है
डिग्री 3 है, तो डेट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर 3 होगी, इससे ज़्यादा पावर नहीं हो सकती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में किसी भी पॉलिनोमियल की पावर 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। तो ये देखो एक्स क्यूब डिग्री देखो 3, या एक्स क्यूब माइनस 4 डिग्री देखो 3 है, या एक्स क्यूब या 2x स्क्वायर प्लस 7, ये देखो डिग्री 3 है, क्योंकि पावर इसकी 3 है। अब उसके बाद एक चीज़ है, मैं यहाँ 4, अगर डिग्री 4 है, अगर डिग्री 4 है तो वो होता है बाई मीन्स डबल ऑफ क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे ये हो गया x रेज़ टू पावर 4, ये देखो डिग्री कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी 4, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और ये x रेज़ टू पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कैसा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए जो हमको 10th में पढ़ना है, वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब देखो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c, इसको दिमाग में रख लेना। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन देखो यहाँ पर डिग्री कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी औकात 2 से ज़्यादा नहीं होगी, 2। अब देखो अगर हम पूछें, ये देखो इट मीन्स इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देयर मस्ट बी टर्म एक्स स्क्वायर, दिस टर्म इज नेसेसरी, मीन्स टर्म एक्स स्क्वायर कंपल्सरी है। एक्स मे बी मे नॉट बी, कांस्टेंट मे बी मे नॉट बी। अब हम आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 ये कैसा पॉलिनोमियल है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो आप क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसा, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कांस्टेंट भी है। अगर हम पूछे ये आपसे कैसा पॉलिनोमियल है, डिग्री की बात पर करेंगे तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पर एक्स और कांस्टेंट नहीं है। अगर हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स कहने का मतलब इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द टर्म एक्स स्क्वायर इज मस्ट, और एक्स एंड कांस्टेंट मे बी मे नॉट बी, एक्स और ये कांस्टेंट हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ जस्ट सी द हाउ वी विल फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो बेटा बच्चे बिल्कुल घबरा जाते हैं, जैसे किसी ने कहा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अरे इसमें घबराने की कौन सी बात है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स when we will solve the polynomial we will get the values of x, that are the zeros of polynomial. now see, अब ये बात आई, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ zeros of polynomial, zeros of polynomial means when suppose this is the polynomial, मैं जनरल पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, दिस इज द पॉलिनोमियल। इफ़ आई से यू हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले यू विल पुट, सपोज दिस इज द पॉलिनोमियल px, देन यू विल पुट द px इक्वल्स टू 0। उसके बाद यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x। अब एक बात आई बेटा कि इफ़ वी विल सॉल्व any polynomial then how many values of x we will get, means there is the concept, means number of values that we will get on solving any polynomial will be equals to its degree. Suppose what is the degree of this polynomial, देखो बेटा डिग्री कितना है 2, it means when we will solve this polynomial we will get 2 वैल्यूज ऑफ x। समझ में आया। सपोज एक पॉलिनोमियल ये है, देखो बेटा 4x की पावर 4 3x क्यूब प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है। अगर किसी ने पूछा कि हाउ मैनी जीरोज विल बी देयर, तो इसकी डिग्री देखो कितनी है, डिग्री है 4। इस मीन्स ऑन सॉल्विंग दिस पॉलिनोमियल वी विल गेट
4 वैल्यूज ऑफ x। समझ में बात आई। अगर ये कोई पॉलिनोमियल है x रेज टू पावर 10 5x³ प्लस 7 कोई पॉलिनोमियल है, when we will solve how many values of x we will get equal to its degree। यहाँ पर डिग्री कितनी है 10, it means 10 values of x we will get। I hope concept is very clear। Now few questions are there। Now just find the zeros of polynomial। तो I am writing the questions on board। देखो पहला क्वेश्चन, हेडिंग क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो ऐसे कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू x² minus 2x minus 8। Now for zeros of polynomial we will put polynomial equals to 0। Now x² minus 2x और माइनस 8। बेटा देखो इसकी शक्ल सूरत किससे मिल रही है, ax² bx प्लस। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। कंसेप्ट क्या होता है, कांस्टेंट -8 को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। x² को कोफिशिएंट मतलब x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा इनटू 1। अब वी विल फाइंड द फैक्टर्स। नाउ वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ -8 सच दैट इट्स मल्टीप्लिकेशन रिमेन 8 एंड डिफरेंस इज -2। देखो बेटा -4 × 2 -8 -4 + 2 ये क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर x लगा देंगे, x लगा देंगे, x लगा देंगे। आप देखो यहाँ पर -2x की जगह पर ये पेस्ट करेंगे। देखो ध्यान से देखो, x² -4x + 2x -8। अब देखो 2 टर्म्स में कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, अब यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x, ये x -4 और यहाँ पर +2 कॉमन लेंगे तो x -4। अब देखो फिर से ये x -4 और ये क्या हो जाएगा, x फिर से कॉमन हो जाएगा, x + 2 = 0। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टर्म्स 0 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x -4 = 0 और x + 2 = 0। बोलो ये क्या हो जाएगा, इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, x = +4 हो जाएगा, x = -2। अब देखो बेटा अपने आप देखो, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। when we are solving the polynomial we are getting 2 values of x। I hope you have understood। if anybody having any confusion then just write in comment section। okay, wait, I am going to fill the ink and see। these questions are very important and such type of questions are generally asked in board examination। now just see question number 2 on the screen। question number 2 is a polynomial ft। देखो यहाँ पर a polynomial ft t² -15। you have to find the a polynomial ft t² -15। you have to find the zeros। for finding the zeros you will put polynomial equals to 0, that is t² -15 = 0। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो t² = 15 हो जाएगा, t √15 हो जाएगा, t -√15 हो जाएगा और ये +√15। देखो 2 0 हो जाए। और एक तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, t² -15। देखो a² - b², इसका हम मेकअप कर देंगे, क्या हो जाएगा, t² और √15 का होल स्क्वायर लिख देंगे, तब भी ये 15 ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, t +√15 t -√15 = 0। अब देखो बेटा इसका मतलब t +√15 = 0 होगा और t -√15 = 0 होगा। t -√15 हो जाएगा, t √15। प्रेम से बोलो जय माता की। देखो ये आ गया। एक क्वेश्चन और देखो, अब जैसे
आपको ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे घबरा जाते। एफ एक्स इक्वल्स टू, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स टू √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। देखो शकल सूरत किससे मिल रही इसकी, ये मिल रही ax² bx प्लस c। अब देखो, अब क्या करोगे, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे, 7√3 इंटू √3, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² से, तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 3 21। अब नाउ वी विल फाइंड द फैक्टर्स so that multiplication remain 21 and sum will be plus 10। तो देखो 7 3 जा 21, 7 प्लस 3 10। अब देखो यहाँ पर x लगा देंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर x, और 10x की जगह पर ये पेस्ट करेंगे। अब देखो ये हो जाएगा √3x², और ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 7√3। अब देखो फिर से 2 टर्म्स में कॉमन और इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब कॉमन हम क्या लेंगे, x। अगर x कॉमन लेंगे तो आएगा हमारे पास √3x प्लस 7। और देखो अब यहाँ भी √3 आना चाहिए कॉमन लेने के बाद, तो अब इसका हम मेकअप कर देंगे। 3 को क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर इंटू x प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, डर के आगे जीत है। ये हो गया, और यहाँ हम √3 ले लेंगे कॉमन, तो आएगा क्या हमारा √3x, और ये हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 0। अब ये फिर से कॉमन हो जाएगा, ये √3x प्लस 7 हो जाएगा, x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, √3x इक्वल्स टू -7 हो जाएगा, x इक्वल्स टू -7/√3। अब ये देखो दूसरा x इक्वल टू -√3। अब यहाँ देखो हाउ मेनी वैल्यूज वी आर गेटिंग इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री कितनी 2, तो हमें कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यूज मिली। नाउ जस्ट सी द लास्ट कंसेप्ट, that is sum of zeros and product of zeros. I have already told you, when we are solving a quadratic polynomial, then we will get always 2 values of x. Means generally we can take that values as alpha and beta. Then alpha and beta आर द निक नेम ऑफ x। यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। सपोज ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² bx प्लस c। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। व्हेन वी आर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ x, है ना, दैट इज वी कैन टेक एज अल्फा एंड बीटा। Then alpha and beta are the nickname of x। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर चीज़ होता सम ऑफ जीरोज। देखो क्या होता बेटा, सम ऑफ जीरोज मीन्स दोनों को ऐड कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये क्या हो जाएगा, -b/a। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट, ओके, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², बोलो c/a। ठीक है। अब अगर कहीं तुम्हें सम ऑफ जीरोज, ओके, सम ऑफ जीरो डेट इज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, दीज आर गिवन एंड यू हैव टू राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फार्मूला क्या होता, ध्यान से देखो, x² माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू x
अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अब नाउ जस्ट सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सम ऑफ जीरोज एंड product of zeros. I hope you have understood. See the question. If alpha and beta, question number 1, if alpha and beta are the zeros of a polynomial, कौन सा है, polynomial px equals to 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, ये पॉलिनॉमियल है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कैसा पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब यहाँ पर देखो अल्फ़ा बीटा है, तो हमें यहाँ पर क्या अल्फ़ा बीटा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फ़ा बीटा मिलेगा। अगर हमको डायरेक्टली मालूम करना है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या होगा, -b/a फार्मूले से। अब कितना है ये देखो, -5/4, ये कितना हो जाएगा 5/4। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना, c/a, c कितना है -1/4। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा भी मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा देखो, इसमें अल्फ़ा बीटा ले लो कॉमन, तो बचेगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में आ जाएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू -1/4 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4। अब देखो -5/16, दिस इज़ द आंसर। नाउ सी देखो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। तो वन थिंग जस्ट आई वांट टू से, keep on watching my videos and support me. If anybody having any confusion, then just write in the comment section. And one thing, next video I will upload that will be based on the based on the sum of zeros and product of zeros, means that video will be very important, so don't forget to see that video. And finally, one humble request from my side, at last but not in least, okay, don't forget to like and subscribe. Thank you very much.